baba. Kialara bandoloro bobo bobo shir yandalara baba kalara yandalara baba shantara. Yalara bandoloro bobo bobo shir yandalara baba kalara yandalara baba shantara. Yalara bandoloro bobo bobo shir yandalara baba shantara. Hallelujah rabalara yandalara bakuluru bobo bobo. Shialara bandoloro bobo bobo shir yandalara baba. Dehem kar maaf kar, रूह के मासास बर है तेरा असरा, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले, तन की शक्ति है तू, मन की मुक्ति है तू, ऐ शहे दो जहां, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले. Hallelujah rabba shir yandalara baba kolororor yandalara baba. Shialara bandoloro bobo bobo. Shialara bandoloro bokoloro yandalara baba baba shantara. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Give you glory, my Lord. Give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Rabba shir yandalara baba baba lara bandoloro bobo. Shialara bandoloro bobo bobo. Shir yandalara baba. हालेलुया वर्शिप यू खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं. आई गिव यू ऑल द ग्लोरी ऑल द ऑनर. लॉर्ड ब्लेस पाकिस्तान, स्पेशली द पीपल हु आर victimized by this flood. I pray, my Lord, that you will have mercy upon Pakistan, and especially those who are perishing, they do not know you as their Lord and Savior. I pray through this disaster they would come to know the saving knowledge of you, my Lord. I pray that you would raise up people, those who will help in times of trouble. I pray you will provide their natural need. Above all, they would come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. So I pray your blessing and have mercy upon Pakistan. Have mercy upon Pakistan, my Lord. Through this difficult time, they would come to know you as their Lord and Savior. Bless each and every soul, those who are right now without homes, without shelter. And I pray that they will find you in this difficult time. Hallelujah, hallelujah. Kula raba shir yandala raba bakulororo yandala raba. Yala rabandoloro bobo bo shir yandala raba bashantara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरी जिंदगानी सारी पुल विच रही है. मेरी जिंदगानी सारी पुल विच रही है. मेरा सी गुनाह सुली यसु चुक लई है. मेरा सी गुनाह सुली यसु चुक लई है. हालेलुया. Hallelujah. Well, first of all, I would like to acknowledge my very dear
and friend for lifetime, Gary Smith from Portland, Oregon. Those who do not know, I have the privilege and honor to study with him together Bible College, and I can ever I cannot thank him ever for all he has done for me. So thank you so much, my dear brother. God bless you. Good to see you. हम आज एज़ेकियल 5वें बाब की स्टडी करेंगे, और मैं अपने बहुत प्यारे भाई महमूद सहोत्रा साहब आपको सब दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने, क्योंकि हर मैसेज में देयर आर सम पीपल जॉइन फर्स्ट टाइम, तो हम एज़ेकियल की किताब की स्टडी कर रहे हैं। एज़ेकियल 1 और 2 बाब में हम देखते हैं कि खुदा जब एज़ेकियल असीरी में होता है, जो मौजूदा इराक़ है, और उस वक़्त इसका नाम बेबीलोन था, और वहाँ पर उसे गए हुए 25 साल की उम्र में जाता है, और 5 साल के बाद खुदा उसको अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, और खुदा अपने तख्त पर बैठा उस पर ज़ाहिर होता है जब वो नहर कबार, जहाँ पर जो तमाम जो यहूदी असीरी में गए थे उनके दरमियान में था, तो खुदा उस पर जो है अपने आप को ज़ाहिर करता है। हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया। जी मैं थोड़ा सा कैमरे से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबशीर अंदर थोड़ी सी इसकी हाइट ऊपर करना चाहूँगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड हूँ। सो एज़ेकियल 3 बाब में हम देखते हैं कि खुदा उसे अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। मैं कुलदीप साहब, जो हमारे बहुत सीनियर पास्टर हैं इंडिया से, सर आपको दिल की गहराइयों से वेलकम। शहजाद साहब जो थाईलैंड में वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान में, and my dear friend Gary Smith in USA and in Pakistan. So all of you I welcome. हम एज़ेकियल 3 बाब में देखते हैं कि खुदा जो है वो एज़ेकियल को कॉल करता है, जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी होती है, जो कि काहिन की उम्र है, और फिर खुदा उसे खिदमत के लिए बुलाता है। हम देखते हैं कि बल्कि 7 नहीं 8 साल का जो अरसा है, एज़ेकियल सिर्फ वही बात कर सकता है जब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल होता है। हमने इसकी भी स्टडी की। फिर हम देखते हैं कि एज़ेकियल ने एज़ेकियल 4 बाब में जो यरूशलेम है उसका मुहासरा किया, और तमाम जो लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई है, जो पुराने ज़माने में बाइबल के दौर में जब किसी शहर को भी कोई दूसरी फ़ौज फ़तह करने के लिए आती थी तो उसका मुहासरा करती थी। तो तमाम लैंग्वेज जो उसमें मैं हमारे बहुत हर दिल अज़ीज़ पास्टर शहजाद सदीक साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो मैं सर आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। सो एज़ेकियल 4 में हम देखते हैं कि खुदा जो है एज़ेकियल को बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक ड्रामाई अंदाज में अपने घर के बाहर बैठकर वो नक्शा बनाता है, और उसमें एक शहर को ड्रा करता है जो कि यरूशलेम है, उसका मुहासरा करता है। जो चीज़ें एज़ेकियल ने 4 बाब में की वही हम देखते हैं कि ठीक 4 साल के बाद जो है नबूकदनेस्सर जो आर्मी लेकर जाता है, और तीसरी मर्तबा तीसरे स्टेज में यरूशलेम का मुहासरा करता है और उसको डिस्ट्रॉय
करता है। ये आखिरी मर्तबा था जब अहद का संदूक जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं मिला, तो कंप्लीटली तौर पर डिस्ट्रॉय करता है। तो ये हम एज़ेकियल 4 बाब में, अब हम जो खुदा इसमें पैगाम दे रहा है यहूदियों को, जो कि उस वक्त 597 की बात है, जो मौजूदा इराक के अंदर 70 साल की असीरी काट रहे थे, तो ये लोग आकर देखते थे एज़ेकियल को कि वो किस तरह, जिसे आप ड्रामा कह सकते हैं, एक ड्रामे की सूरत में जो है वो ये मैसेज उनको कन्वे कर रहा होता है, और वो बड़ी अच्छी तरह इस बात को समझ रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। बाय द वे, मैं इस बात को बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस ही वो वाहिद किताब है, ना तो दुनिया के पास पैगाम है, ना CNN के पास, ना BBC के पास, लेकिन खुदा के कलाम में कल क्या होना है, ना सिर्फ कल बल्कि आने वाले वक्त में, बल्कि इटर्निटी, जो हमेशा की ज़िंदगी इसी ज़मीन पर गुजारी जानी है, उसमें क्या होने वाला है, बाइबल मुकद्दस में ऑलरेडी वो दर्ज है। अब ये जो बातें हम एज़ेकियल 4 बाब में और 5वें में देखने वाले हैं, ये उस वक्त 597 BC में ये नबूवत थी, लेकिन उसके 4 साल के बाद जो है ये एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ जैसा मर्द खुदा एज़ेकियल ने कहा था। बाय द वे, एज़ेकियल ने बहुत सारी बातें जो कहीं आगे चलकर हम देखेंगे जो अभी पूरे होनी है। अगर ये एज़ेकियल की बातें पूरी हुई हैं तो जो बाकी लिखी हुई है वो भी पूरी होंगी। आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट। आइए हम आज 5वें बाब से सीखेंगे, है आदमजात। मैं जब भी इस किताब मुकद्दस में बिलखसूस एज़ेकियल में पढ़ता हूँ तो इट गिव्स मी अ ग्रेट ह्यूमैनिटी। ए आदमजात का मतलब है ए महज इंसान, ए खाकसार, ए मिट्टी के पुतले। ये खुदा एज़ेकियल को एड्रेस करके कह रहा है, ए आदमजात, तू एक तेज तलवार ले और हजाम के उस्तरा की तरह उससे अपने सर और अपनी दाढ़ी मंडवा और तराजू ले और बालों को तोल कर उनके हिस्से बना। हम वर्स नंबर 1 में देखते हैं, खुदा हुक्म दे रहा है एज़ेकियल को कि एक तेज तलवार, नॉर्मली तौर पर पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं पर भी जब बाल आप कटवाते हैं तो एक रेज़र के साथ, मशीनें भी निकली हैं लेकिन रेज़र नॉर्मल इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पर खुदा उससे कह रहा है कि तलवार जो है, इट स्पीक्स ऑफ डेथ, इट स्पीक्स ऑफ जजमेंट। सो खुदा बेसिकली पैगाम दे रहा है जो यहूदियों को कि जो यरूशलेम में लोग रह गए हैं, कुछ लोग यरूशलेम में रह गए थे और बाकी अभी तक यरूशलेम गिरा नहीं है। जिस दिन ये कलाम हुआ है 587 BC में, BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और जो AD जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, AD लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये जो सदी चल रही है ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जो है शुरू हुई है, और BC बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, लेकिन बिफोर कॉमन एरा भी हम इसे कह सकते हैं। जो कैलेंडर 2 तरह के हैं, बिफोर कॉमन एरा, तो खुदा ने जो बाग अदन में आदम को पैदा किया था 4000 BC कम होती जाती है और AD बढ़ रही है, यानी कि एनो डोमिनी जो कैलेंडर हमारा चल रहा है। खैर, एक तेज तलवार ले और हजाम के उस्तरा की तरह उससे अपना सर और अपनी दाढ़ी मंडवा। जो सर के बाल यहूदी कल्चर में ये एक इज्जत और बालों का कटवाना, जिस तरह वो कह रहा है मंडवा, इसका मतलब है शेम, शर्मिंदगी,
और आगे जो है एक बुरा वक्त उन पर आने वाला है। ये पैगाम था खुदा का जो बाबुल के अंदर उस वक्त यहूदी लोग मौजूद थे। मैंने जैसा कि कहा कि नॉर्मली तौर पर अगर हम गिनती की किताब देखें, 6 बाब उसकी 5 आयत, 8 बाब और उसकी 7 आयत, तो हम देखते हैं कि नॉर्मली तौर पर जो जब यहूदी लोग बाल कटवाते थे तो उनके सर पर रेजर इस्तेमाल होता था, लेकिन यहां पर खुदा ने उन्हें कहा सोड। इसका मतलब है कि जो आने वाला कहर उन पर पड़ने वाला है, जो खुदा की अदालत उन पर लगने वाली है, ये उस चीज का सिंबॉलिक था कि इसलिए खुदा ने उसे कहा कि अपने सर को एक तलवार ले और हजाम के उस तरह की तरह उससे अपने सर और अपने दाढ़ी मंडवा और तराजू ले और बालों को तोल कर उनके हिस्से। सो ना सिर्फ खुदा ने कहा कि अपने बाल कटवा, बल्कि उनको कहा कि उनको तराजू ले और अपने बालों को तोल कर उनके हिस्से बना। इसका मतलब साफ ये है कि पहली बात तो ये है कि ये हम यशाया 7 बाब 20 में भी देखते हैं, जिस तरह यहां पर खुदा ने उसे कहा अपने सर के बाल कटवा, इसी तरह हम वहां पर भी देखते हैं दैट स्पीक्स ऑफ कि जो आने वाली जजमेंट है, जो खुदा की अदालत उन पर लगने वाली है, उसके मतलब बयान किया गया है। और हम शेविंग ऑफ हेयर, जो सर के बालों को कटवाना है, हम 2 सैमुएल उसका 10 बाब 4 आयत में भी देखते हैं कि जब ये बाल कटवाए गए थे तो इसका मतलब है कि उन पर एक कहर पड़ने वाला है, उन पर एक खुदा का गजब आने वाला है और खुदा की जजमेंट जो है यहूदा पर आने वाली है, जो कि हम देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि नबूकदनेस्सर आर्मी ले जाकर जो है तीसरी दफा, बाय द वे ये जो नबूकदनेस्सर तीसरी मर्तबा जाकर उसने यहूदा को फतह किया है, ये आखिरी सल्तनत थी। आप कहते हैं जी इसराइल की सल्तनत तो आज है, जी बिल्कुल इसराइल की बादशाह है, लेकिन जो उनका सिस्टम दाऊद के घराने से जो बादशाह थी, जो सिलसिला यहां पर खत्म हो जाता है, अब दोबारा जब शुरू होगा, जब खुदावंद यीशु मसीह आमदे सानी पर दोबारा आएंगे और इस दुनिया पर, क्योंकि वो दाऊद के घराने से होगा, मैं ये बात फिर रिपीट कर दूं, 586 BC में आखिरी मर्तबा दाऊद के घराने से जो बादशाह था जिसको शिकस्त मिलती है। अब दोबारा वो जो सिलसिला है, खुदावंद यीशु मसीह जब आमदे सानी पर आएंगे, इस दुनिया पर भेड़ और बकरियों की अदालत होगी, कौमों की अदालत होगी। फिर मत्ती रसूल 25 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है कि आओ मेरे साथ बादशाह करो। सो खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाह जो शुरू होगी, जो सिलसिला यहां पर टूटा है 586 BC में, वही सिलसिला खुदा ने दाऊद की नस्ल से बादशाह शुरू होगी, जिसका कोई एंड नहीं होगा। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर बादशाही करेगा, जिसका जिक्र ज़करिया 14 बाब और उसकी 9 आयत में है कि दुनिया पर एक ही बादशाह होगा। देखिए हर हुकूमत जो आती है उसके बाद दूसरी है, तीसरी है, लेकिन जिस दिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत इस जमीन पर, मैं ये बार बार कह रहा हूं इस जमीन पर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस तालीम को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरे दिल से ईमान रखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही, क्योंकि जो वादे खुदा ने इसराइल से किए थे वो तो अभी नहीं पूरे हुए। इस जमीन पर वो तमाम, जब शेर और बकरी इकट्ठे घास खाएंगे, जब बच्चे कोबरे को हाथ में पकड़ेंगे, वो बातें जो ज़िक्र 65 में लिखी है वो तभी पूरी होंगी जब खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाह जो है इस जमीन पर कायम होगी। अब बात क्योंकि मेरे मौजू से हट जाएगी, 1000 साल का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद बादशाही नहीं,
उसके बाद बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की है, लेकिन शैतान को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा और फिर वो दुनिया को गुमराह करेगा और फिर उसको हमेशा की आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा और फिर जो है आसमान से आग बरसेगी। ये जो दुनिया आप और मैं देख रहे हैं ये आर्जी है, लेकिन 1000 साल की बादशाह के बाद ये पतरस रसूल के खाते में लिखा है कि खुदा इस जमीन को जला देगा। क्यों? क्योंकि जो आदम ने गुनाह किया वो आज भी मौजूद है। फिर नई जमीन होगी, नया आसमान होगा। प्लेनेट यही है, आपने और मैंने किसी और प्लेनेट में नहीं। ज़बूर 37 में लिखा है सादक जमीन के वारिस होंगे। हम अय्यूब 19 बाब में पढ़ते हैं, उसकी 25 आयत में उसने लिखा है कि फॉर आई नो माई रिडीमर लिव, और मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। तो ये जो सब कुछ मैं बयान कर रहा हूं ये इसी जमीन पर होना है, इसी जमीन पर। प्लेनेट नहीं है, लेकिन खुदा इसे नया जरूर करेगा, प्लेनेट चेंज नहीं होगा। हम एज़ेकियल में वापस जाएंगे। एज़ेकियल उसकी 2 आयत। फिर जब मुहासरा के दिन पूरे हो जाएंगे, आपको याद है 390 और 40 दिन ये खुदा ने मुहासरा के लिए दिए थे, जो बयान करते हैं वो गुनाह का पीरियड जो उन्होंने गुजारा और जब तक वो जजमेंट होने वाली है। और फिर जब मुहासरा के दिन पूरे हो जाएंगे तो शहर के बीच में, ये बड़ा जरूरी है, शहर के बीच में, ये किस शहर की बात हो रही है? यरूशलेम की। अंग्रेजी में से कहेंगे एंड द सेंटर ऑफ यरूशलेम। यरूशलेम दुनिया का मरकज है, आज भी मरकज है और ये कल भी मरकज होगा। और यरूशलेम वो शहर है जहां से खुदावंद, ये दुनिया का कैपिटल होगा, जहां से खुदावंद यीशु मसीह 1000 साल बादशाहत करेंगे। और ये शहर खुदा के दिल के करीब है। दुनिया इससे प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये शहर बहुत जरूरी है। इसी शहर में सोने की सड़कें बनी है, इसी शहर में जो आसमान से यरूशलेम है वो नीचे आएगा। और लिखा है कि खुदा अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा और उनके आंसू पूंजेगा और वो हमेशा हमेशा उनके लिए साथ होगा। माय डियर फ्रेंड, आप यरूशलेम को पसंद करें ना करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कोई दुराए नहीं है। कलाम मुकद्दस डिक्लेयर करता है, बाइबल मुकद्दस इस चीज को बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह इस शहर से दुनिया पर राज करेंगे। खुदावंद का शुक्र हो, बाइबल मुकद्दस थ्रू आउट द हिस्ट्री वाहिद किताब है जिसने जो लिखा है वो साबित भी किया है। इसलिए मुझे और आपको इसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जो इसका मुसन्नफ है, जो इसका लिखने वाला है, जो कायनात का खालिक और मालिक है, वो इसकी खुद जो है इसके पीछे इसकी जो है वो प्रोटेक्शन करता है। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। और तू शहर के बीच में उनका एक हिस्सा लेकर आग में जला दे। सो खुदा ने एज़ेकियल को कहा अपने बाल कटवा और कुछ हिस्सा लेकर आग में जला दे। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग, जब नबूकदनेस्सर, जिस दिन ये लिखा गया उसके 4 साल बाद जब नबूकदनेस्सर जाता है तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। कुछ लोग आग से मारे गए, लिखा है आग में जला। इसका मतलब है कुछ लोग जो है गुनाह की वजह से उस दिन, आज ये बात माजी है, जब एज़ेकियल कर रहा था तो मुस्तकबिल था, लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं तो ये बात तो पूरी हो चुकी है। तू आग में जला और दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से। इसका मतलब है कुछ लोग आग के जरिए मारे जाएंगे और ये पूरी हो चुकी है। बाय द वे, कब पूरी हुई है? 586 BC में। कैसी बात है दुनिया में ये। देखिए, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, जो मर्जी आपका धर्म है, मैं यहां पर आपके धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा। मैं माय डियर, खुदा का शुक्र हो,
मजहबों ने अच्छी बातें सिखाई हैं, लेकिन जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु मसीह के पास हैं। बाइबल मुकद्दस किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रही, नो नो नो, लेकिन ये मानना भी तो पड़ेगा कि बाइबल मुकद्दस में जो लिखा हुआ है वो पूरा हुआ है और आगे भी पूरा होगा। हालेलुया। दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से इधर उधर बखेर, और तीसरा हिस्सा हवा में उड़ा दे, और मैं तलवार खींचकर उनको पीछा करूंगा। खुदा की जजमेंट उस शहर के खिलाफ है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन इसका साफ मतलब यह है गुनाह पर खुदा ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। खुदा ने गुनाह को गुनाह ही कहा है और उसकी जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जी जनाब, हम एजिकियल चैप्टर 5 और वर्स नंबर 2 की स्टडी कर रहे हैं। एजिकियल चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 2, तीसरी आयत में, और उनमें से थोड़े से बाल गिन कर ले और उनको अपने दामन में बांध। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ आग के जरिए जजमेंट होगी, कुछ तलवार, और कुछ अपने दामन में बांध। इसका मतलब है कुछ लोग बच जाएंगे। मैं ये बार बार बात रिपीट कर रहा हूं। जिस दिन ये कलाम हुआ 597 बीसी में, आगे चलकर हम देखते हैं 586 बीसी में, जब नबुकदनेस्सर ने तीसरी और आखिरी मर्तबा यहूदा पर हमला किया और यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिया। यरूशलेम वो वाहिद शहर है जो 37 मर्तबा जो है मुख्तलफ जो पावर्स ने इस पर कब्जा किया। 2 मर्तबा तो कंप्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन ये वो शहर है जो हमेशा के लिए आबाद रहेगा। ये वो शहर है जिससे खुदा प्यार करता है। ये वो शहर है जहां पर खुदा का आसमान से जो है वो नया यरूशलेम उतरेगा। ये वो शहर है जिसका जिक्र जो है वो हम मुकाशवा में देखते हैं। ये वो शहर है जहां पर खुदा हमेशा के लिए अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा। ये वो शहर है जहां से खुदा यीशु मसीह 1000 साल बादशाह करेंगे, और उसके बाद भी हमेशा की बादशाही मेरे खुदावंद की होगी और उसका कोई एंड नहीं होगा। और ये वही शहर है जहां से जो है वो बर्रे का नूर बरसेगा और दुनिया उसके जलाल से मनवर होगी। और ज़मीन पर आज तो इंडिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी एक दिन आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन आने वाला है आपको ये फेसबुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन आने वाला है आपको ये हम जो भी इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुदा यीशु मसीह की मानद होंगे और कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी, कोई हदें नहीं होंगी। आप जनाब जहाँ मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं विद इन सेकेंड। आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसे कोई दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर जब जलाली बदन में इंसान होगा तो फिर इन चीज़ों का मोहताज नहीं होगा। हालेलुया। जी वर्स नंबर 3 में हमने देखा कि कुछ लोग बच गए थे। जब मैंने ये बात पहले भी की, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। 586 में इज़राइल की बादशाही का आखिरी जो बादशाह हम देखते हैं, लेकिन आज जो इस्राइल की बादशाही है उसमें अभी जो दाऊद के घराने से बादशाही करनी है वो यहां सिलसिला टूटा है, यहीं से शुरू होगा। और वो कब शुरू होगा? आमदे सानी पर, जब मेरा खुदा यीशु मसीह बादशाही शुरू करेगा। तो जो सिलसिला 586 बीसी में खत्म हुआ था वो सिलसिला दोबारा शुरू होगा। 587 बीसी में
جو دور آج چل رہا ہے اسے کہتے ہیں ٹائمز آف جینٹائل. دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، جینٹائل اور یہودی. یا غیر قومیں ہیں، آپ اور میں ہم غیر قوم ہیں. دو ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، لیکن بلڈ کے حساب سے روحانی طور پر ہم بھی ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، جینٹائل اینڈ جیوز. تو آج جو دور چل رہا ہے ٹائمز آف جینٹائل اسے کہتے ہیں. لیکن جس دن میرا خداوند یسوع مسیح بادشاہی شروع کرے گا تو پھر اسرائیل کا دور شروع ہوگا، پھر خداوند کا دور شروع ہوگا. ہلیلویا. ورس نمبر 4، پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے. اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل. آپ ذرا تصور کریں، یہ جو ازیکیل کر رہا ہے یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. nothing wrong with that. یہ گھر کے باہر بیٹھا، پہلے اس نے چوتھے باب میں ایک محاصرہ بنایا ہے، اور جو اسرائیل کے لوگ ہیں بابل کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے کہ باہر بیٹھ کر وہ ایک ڈرامہ کر رہا ہے اور پیغام خدا پہنچا رہا ہے جو یہودی لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور جو قوموں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ خدا کی عدالت سب سے پہلے اس کے گھر سے شروع ہوئی. ججمنٹ begins at the house of the Lord. پہلے خدا نے اپنے، دیکھیں جی گناہ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ان میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی. 5ویں آیت میں یوں مرکم ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے، میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس میں رکھا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے. آپ جیوگرافیکل سٹڈی کر کے دیکھ لیں، اسرائیل ویسے بھی دنیا کا مرکز ہے. ہر کام جو پہلے ہوا ہے وہ یروشلم سے شروع ہوگا. میں یہ بار دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کل خدا اس زمین پر کیا کرنے والا ہے، آپ کی آنکھیں اسرائیل پر ہونی چاہیے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ازیکیل، دانیل، مکاشفہ کو نہیں سمجھ پاتے. اگر آپ اسرائیل کی تاریخ کو نہیں سمجھتے، اگر آپ اسرائیل کے بارے میں علم نہیں رکھتے، آپ ہیکل کے بارے میں علم نہیں رکھتے، تو پھر آپ جو اپوکلپٹک لٹریچر ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. مجھے کسی نے کہا، اور جی پاسب آپ تو اسرائیل کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، فلاں فلاں پادری تو انہوں نے وٹ کٹ دیتا ہے. بھائی مجھے کیا ہے، میں تو ہر اس چیز سے پیار کرتا ہوں جس سے میرا خدا کرتا ہے. یہ بات میں ریپیٹ کر دوں، میں ہر چیز اس سے پیار کرتا ہوں جس سے میرا خدا کرتا ہے. اگر میرا خدا یہودیوں کو پیار کرتا ہے تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں بھی پیار کرتا ہوں. میں تو یقین کریں، میں کو اپنی بڑائی نہیں کر رہا، میرا کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، ان کے جو ربی بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بات شروع ہوتی، کہتے یار ہماری بائبل ہے، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. میں کہ نہیں جناب، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری بھی بائبل ہے. سو خدا کا شکر ہو کلام مقدس کے لیے کہ خدا جو ہے اس نے اسرائیل کو مرکز بنایا ہے. اسرائیل اس وقت جو میں یروشلم کی بات کر رہا ہوں، یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل ہے، لیکن ایک دن آنا ہے یہ دنیا کا کیپٹل ہوگا. ایک دن آنا ہے یہاں پر میرا خدا جو تیسرے آسمان پر ہے اس کا تخت بھی یہاں پر ہی لگے گا، اور یہاں سے نور برسے گا، برے کا نور ہوگا. اور ایک دن آنے والا ہے، آج تو آپ کیلنڈر فالو کرتے ہیں جی 2022 چل رہا ہے، ایک دن آنے والا ہے مائی ڈیئر
कोई कैलेंडर नहीं फॉलो किया जाएगा, कोई ये जो कॉन्सेप्ट आज है, दिन चढ़ गया रात, नो एक ही दिन होगा, इटर्निटी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको दावा करता हूं आप बोर नहीं होंगे। ये जो टेम्परेरी जो है सारा ये कुछ जो एंटरटेनमेंट है, खुदा असल बानी है। और उसने पहला करंथियों में गालबन लिखा है, नो आई हैव सीन, नो ईयर हैव हर्ड, बट द लॉर्ड हैज इन स्टोर फॉर दोज हु लव हिम। तो किसी आंख ने तो अभी देखा भी नहीं है कि खुदा ने क्या कुछ आपके लिए रखा हुआ है जनाब, बहुत कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। वर्ष नंबर 5, खुदावंद यूं फरमाता है कि यरूशलेम यही है, मैं उसे कौमों और मुमलकतों के दरमियान जो उसके आसपास में रहता है, लेकिन उसने दीगर अक़वाम से ज़्यादा शरारत करके मेरे अहकाम की मुखालफत की और मेरे आयन को आस पास की मुमलकतों से ज़्यादा रद्द किया, क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आयन की पैरवी ना की। ये किसकी बात खुदा कर रहा है? खुदा बात कर रहा है बनी इसराइल की, कि मेरे अहकाम को उन्होंने रद्द किया। माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने कहा दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, यहूदी और गैर कौम। 2 ही खुदा के, या तो बरकत है या कर्स है। अगर ताबेदारी करेंगे तो बरकत है, यहां पर उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा की सजा है। वर्ष नंबर 8, बस खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तुम अपने आस पास की कौम से बढ़कर फितना अंगेज हो और मेरे आयन की पैरवी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कई लोग कहते हैं जी खुदा तो जनाब बड़ी फेवर देता इसराइल को। आपको किसने कह दिया? जितनी अजियतें इसराइल ने सही हैं, मैं नहीं समझता तारीख में किसी और ने सही है। इवन क्रिश्चियनिटी भी इतना सफर नहीं किया, इतनी परसिक्यूशन जितनी यहूदियों की परसिक्यूशन हुई है। यहां पर देखें, खुदा क्यों ने फूलों के हार पहना रहा है? नहीं जनाब, खुदा उनसे प्यार जरूर करता है, लेकिन जहां गुनाह की बात है खुदा ने सजा भी दी है। ये देखें, खुदावन ने तो बड़े बड़े सख्त अल्फाज उनके लिए कहे हैं। इसलिए ये कह देना कि खुदा इंजी में जिमें जनाब उन्होंने ज़्यादा फेवरेट नहीं, ये गलत है। फिर आपने बाइबल स्टडी नहीं की, फिर आपको कलाम का इल्म नहीं है। खुदा ने बहुत जो है उनकी क्लास भी बड़ी लिया, जिसे आप कहते हैं ना कुट भी बड़ी पई है उन्होंने। तो खुदा ने कोई ऐसी ये बात कह देना, ये बड़ा पुअर आपका बयान होगा कि जनाब खुदा उनकी ज़्यादा फेवर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बाइबल पढ़ें तो सही, देखें क्या लिखा है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं ही तेरा मुखालफ हूं। दसो तुहाडा भला सी बंदा इत्थे की कर सकता है? खुदा खुद इसराइल का मुखालफ हो गया। क्यों? गुनाह की वजह से। नो, इसराइल समझता था कि यार बस ना 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 ना, खुदा एक टाइम है, उसके बाद खुदा ग्रेशियस जरूर है, लेकिन एक स्टेज आ जाती है जहां पर खुदा ने कहा कि नहीं। लिखा है मैं ही तेरा मुखालफ हूं और तेरे दरमियान सब कौमों की आंखों के सामने तुझे सजा दूंगा। खुदा ने कोई फेवरेटिज्म नहीं की, तमाम कौमों के सामने खुदा ने सजा दी। और मैं तेरे सब नफरती कामों के सबब से, किससे बात कर रहा है? जो 2 कबीले रह गए थे, यहूदियों की बात कर रहा है खुदा। सब कबीलों के सबब से तुझ में वही करूंगा जो मैंने अब तक किया और कभी ना करूंगा। बस जब मैं बाप बेटे और बेटा बाप को खा जाएगा और मैं तुझे सजा दूंगा और तेरे यकीनन तेरे बकिया को हर तरफ परागंदा करूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप लेमेंटेशन
पढ़ें जो यिर्मयाह के बाद है। यिर्मयाह बड़ा खूबसूरत उसको बयान करता है, जो यहां खुदा फरमा रहा है ऐसे ही हुआ। नबूकदनेस्सर ने कोई जो भी उसे नजर आया उसको कत्ल कर दिया, और यिर्मयाह पहाड़ पर बैठकर रोकर उस शहर के मंजर को बयान कर रहा है कि यरूशलेम हैकल, वो पाक जगह जहां पर सुलेमान हैकल के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता था, वो हैकल भी गिर गई और आज तक अहद का संदूक नहीं मिला, और वो जगह मिलियामेट बर्बाद होगी, आंसू बह रहे हैं और हर तरफ रोना ही रोना है। ये खुदा ने मंजर जो एजेकियल को दिखाया वैसे ही पूरा हुआ। मैं आज खुदा के कलाम को यहाँ पर ही छोड़ूंगा, 5 बाब और उसकी 10 आयत, और फिर यहाँ से जिस दिन भी खुदा ने मुझे मौका दिया मैं ज़रूर इसको जारी रखूँगा। मैं गो आपसे रेगुलरली नहीं मुलाकात हो पाती, लेकिन मैं ये बताता चलूँ, मैंने अपने खुदा से अहद किया हुआ है और मैं अपने दिन में लाजमी, अगर मुझे 16 घंटे मिल जाए, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। रोज़ाना पढ़ना और लिखना एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। रोटी तो मिस हो सकती है, लेकिन पढ़ना और स्टडी और उसको कलम बंद करना ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। आपसे गो मुलाकात, और मैं ये भी बता दूं, आपसे जो मुलाकात होती है वो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मैं ये बात पहले भी कह चुका, मुझे को होता है ना, लोगों को शौक़ होता है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना है कि आपसे एक मोहब्बत है और मुलाकात हो जाती है। तो खुदावंद का शुक्र हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कभी आपसे मुलाकात नहीं होती, लेकिन आपको ये चीज़ मैं रेस्ट एश्योर करूँ कि मैं बड़ी कमिटमेंट से, लगन से, एक इश्क की हद तक मैं अपना स्टडी रोज़ाना करता हूँ और फिर मैं उसको कलम बंद भी करता जा रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र हो, जो कुछ लिखा है सभी अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। मैं खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। जो बुक्स लिखी हैं वो किंडल पर हैं। किंडल एक लाइब्रेरी है ऑनलाइन, जो जापान, यूके, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, जो लोगों ने ऑनलाइन उसकी मेंबरशिप ली हुई है। बहरहाल मैं इस बात पर एंड करूँगा, यूहन्ना 3 बाब और 27 आयत, इंसान कुछ भी नहीं पा सकता अगर उसे आसमान से ना दिया जाए। तो मैं खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि इल्मुल आखिरत का जो बोझ उसने दिल में डाला है, मैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं ये भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तालीम को मुझे बड़ा फ़ख्र है, पास्टर फ्लोरेंस नथानियल जिनको मैंने ऑर्डेन किया है, ये बहुत मुझे ये फ़ख्र है कि कल मैं इस दुनिया में नहीं भी हूँ तो ये जनाब इस तालीम को जारी रखेंगे। पास्टर संजीव कुमार साहब हैं, हमारे पास्टर सीनियर पास्टर कुलदीप साहब हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने चेहरे को आप पर जलवागर फरमाए। आई लव यू ऑल। तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं बिलखसूस आपसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आपने दानियल 7 बाब कहा है, तो जी मैं ज़रूर जिस दिन भी मौका मिला मैं दानियल 7 बाब पर ज़रूर एक मैसेज दूंगा। पास्टर संजीव साहब ने कहा है पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तमाम जो फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में, आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आई लव यू ऑल। मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो आपसे ज़रूर जल्द मुलाकात होगी। इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।